Hello friends, today I am going to devote about the types of chemistry and what is chemistry, and the second topic is you see atomic structure. It is very highly weighted in the exam of JEE Mains, JEE Advanced. So let's begin. Now, firstly, what is chemistry? Chemistry is a study of a science which deals with the composition of a matter. Composition of matter means how the substance are composed and the properties of them and the structure. So this means by a chemistry. Now, what are their types? The types are organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, and biochemistry. What is organic chemistry? In organic chemistry, we study about physics plus chemistry. Means you will feel whenever you will study a physics plus chemistry, you will feel that the physics is coming in the chemistry. So this meant by organic chemistry. What is inorganic chemistry? Inorganic chemistry, the types of elements which we study: metals, non-metals, metalloids. Metals, their property, all their properties. Another thing, that the analytical chemistry. In analytical chemistry, we study about the composition of matter and the structure. So, and what are their properties? So, these three things we study in the analytical chemistry. And the another thing is biochemistry. What is biochemistry? Many students have a doubt in this bio plus chemistry. Yes, biology. What is biology? Biology means a organism which are classified by a scientist. So, the organisms are classified inside their bodies. What reactions are happening in our body? For the we can say we come in an animalia kingdom. So this is the bio. It's come in a biology. So okay. So the blood reaction is, if the blood is here, so it will go here. The why it is happening. So it comes in the biochemistry. Now we have learned what is chemistry, and the types of chemistry. Okay, now let's begin with this topic, which is atomic structure. What are atoms? An atom is the smallest particles of an element. Now you will say, what is element? Element is made by an atom. Means atom is the smallest particle. Now you know a bundi ka laddu. We do at the very pieces. It's coming in small balls. So think that is an atom. If it's many atoms, means they join, so becomes molecules. If they join, molecules are only known as elements. So this is meant by this is meant by element. Okay, now we will see the chemical bonding. Now here is hydrogen. Oxygen means this form H2, means we have learned H2O reaction. So that is a water. It's a molecular formula which we represented by that. Now hydrogen plus oxygen. Hydrogen. Now you will say here are two. So the what we say electrons. Electrons of one atom in hydrogen is 1. मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. पहले हम लोग ये देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट दे मूव इन अ सम constant distance. Okay, see, there are these shells and the electrons are revolving. In the nucleus there is present proton and neutrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged. This is neutral, means nothing. Means what we say, plus minus. Okay, wait.
it's minus equals to it's a neutral. So it is a neutral. For that reason, the neutrons are neutrals. So these are the nucleus, protons, and neutrons. Nucleus, protons, and neutrons, electrons. So these are the types. So we are going to observe now the chemical bonding of this hydrogen. Firstly, I want to say that the hydrogen have a one electron, means a negatively charged. So the electrons are equal to protons which are present in nucleus. So this theory is given by Rutherford scientists, and we have studied in standards of 5th and 6th, they have studied. Okay, so now these are the what hydrogen का two atoms, they are combined, means they are combined. Now अभी वो अपने इक्वेशन को मीन्स अपने रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे. तो अभी हमको पता है ऑक्टेन स्टेट नीड्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द रिएक्शन. मीन्स वो इलेक्ट्रॉन पूरे उसको बैलेंस करने के लिए उसको लगेगा एक इलेक्ट्रॉन. ओके, एक इलेक्ट्रॉन तो है बट उसको ऑक्टेन स्टेट पूरा याद थी. मतलब कोई भी एटम हो जिसका ऑक्टेन स्टेट मीन्स किसी का तो ऑक्टेन स्टेट होना चाहिए और वी कैन से 8 होना. ऑक्टेन स्टेट्स उनके पूरे होने चाहिए. जैसे कि ऑक्टेन स्टेट जैसे कि किसके नजदीक है, हाइड्रोजन हैव वन इलेक्ट्रॉन, सो वो एक के नजदीक है तो उसके 2 मीन्स 2 चाहिए उसको. मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स तो है बट उसको एक और चाहिए, उसको ऑक्टेन स्टेट अपना पूरा करना है. He is required to complete his octane state. नहीं तो उसको भी वो रिएक्शन बैलेंस ही नहीं होगा. तो क्या होगा, जो दो हाइड्रोजन के गैसेस है मींस एक के पास भी एक है उसको भी चाहिए एक, और दूसरे के पास भी एक है उसको भी चाहिए. तो लोग क्या करते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं. कैसे कंबाइन होते हैं ये देखते हैं हम लोग. We study now see. ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे. कंबाइन होने के बाद क्या होगा, जब ये कंबाइन होंगे ये दोनों में रिवॉल्व करेंगे. तो दोनों में रिवॉल्व करेंगे तो इसका ऑक्टेन स्टेट पूरा हो जाएगा क्योंकि उसको भी 2 मिल रहा है इसको भी 2 मिल रहा है. तो हाइड्रोजन 2H इसीलिए लिखा है क्योंकि उसको ऑक्टेन स्टेट अपना पूरा करना है. नाउ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज बीन. नाउ हियर ऑक्सीजन O2 अभी उसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको भी 2 चाहिए क्योंकि उसको 8 करना है बिकॉज ही हैव टू कंप्लीट हिज ऑक्टेन स्टेट. तो वो 2 जो है ना वो दोनों थे हाइड्रोजन के पास, तो वो दोनों कंबाइन हो गए तो सबका ऑक्टेन स्टेट पूरा हो गया. तो ये इक्वेशन जो केमिकल बाउंडिंग है बैलेंस हो गया. इट्स नो, तो ये बैलेंस हो गया तो इसको हम लोग वाटर कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपर वाटर बनाएगा. ओके, तो O2 इसलिए आया क्योंकि उसको बैलेंस करना था. मींस अभी नहीं रहेगा ना तो वो दूसरे O2 को लेगा उधर अपने साथ केमिकल बाउंडिंग करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस होंगे. मींस उसको भी 2 मिलेगा इसको भी 2 मिलेगा रिवॉल्व करेंगे तो ही हैव कंप्लीटेड हिज ऑक्टेन स्टेट. तो ऐसे ऑक्टेन स्टेट पूरा करने पर यहाँ O2 आता है. इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आल्सो. तो इधर क्या आएगा 2H2. अभी ये सेम आएगा बिकॉज क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 बिकॉज वो 2 है एज वी नो. नाउ ऑक्सीजन एक ही है तो ऑक्सीजन इज 1 एज वी सी हियर. ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ द chemical bond is done with the water. Now we will see the distribution of the electrons as per the capacity of shell subshells. Okay, now subshells. Now we will see about shells and subshells. What is shells? Now ये आप देख रहे हो KLMN ऐसे सीक्वेंस में रहता है. इट्स मेन शेल. ये मेन शेल होते हैं जिसको हम लोग काउंट करते हैं KLMN और इनके कोई कांस्टेंट वैल्यू होते हैं. देखिए इनका अभी K का है 8 इलेक्ट्रॉन्स, L का है 18 इलेक्ट्रॉन्स, M का है
M का is 18 electrons, L का is 8 electrons and N का is 32 electrons. तो ये बनते कैसे हैं? इसके अंदर जो सब शेल्स होते हैं ना, जो प्रेजेंट होते हैं, ये लोग उससे बनते हैं सब शेल्स. नाउ यू नो, अभी के जो शेल होता है, के मेन शेल है, के शेल के अंदर एक होता है एक सब शेल विच इज नोन एज एस. यू कैन से एस, बट हमको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है 1s. ओके, नाउ 1s, 2s, 2p, 3p and 3d, 4s, 4p, 4d, 4p. So these are the subshell. मतलब k के अंदर एक ही सबशेल प्रेजेंट है विच इज नोन एज s. थोड़ी देर के लिए ये जो वैल्यूज है 1 2 3 4 उसको हटा दो तो आएगा s. नाउ जो शेल है उसको ऑक्टेन स्टेट l का भी पूरा करना है तो उधर वो क्या करेगा, s को भी लेगा अपने सबशेल में और p को भी लेगा. इट्स अ कांस्टेंट नेम, ये उसका कोई फुल फॉर्म नहीं, कांस्टेंट नेम डाले तो वो sp. तो s और p है l शेल में. s का वैल्यू कितना है 2 और p का वैल्यू ना, भी सबशेल्स के भी वैल्यू होते हैं. सबशेल्स के देखो या s सबशेल जो होता है उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, p जो होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, d जो होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स, f इज 14 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो s के पास इधर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं. नाउ हियर 2s. व्हाट इज 2s? 2s, leave that 2, first I will define that 2, s. So here is s. तो s का जो 2 वैल्यू है, 2 जो इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है सबशेल में वो लेगा वो, देन p will be taken by it, means p भी लेगा वो और तब जाके वो l शेल को पूरा प्रॉपर बैलेंस करेगा. नेक्स्ट d जो होता है m. नाउ सी m मेन शेल है, as we see here it's a third shell, so third shell of atom. Now here ये 3 शेल को लेते हैं अपने रिएक्शंस, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए, फुल एटम को बैलेंस करने के लिए 3 सबशेल्स लेता है. पहला s, p को भी लेगा और d को भी लेता है क्योंकि उसको बैलेंस करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आ सकते हैं. तो इधर s का वैल्यू कितना था 2, इधर p का वैल्यू कितना था 6 एंड दिस इज 10. तो कई बच्चों को डाउट होता है इट इज 16 बट वैल्यू है 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ एट द लास्ट टू कंप्लीट हिज ऑक्टेन स्टेट, तो ये चारों को लेगा s, p, d, f. तो ये सारे वैल्यू को मिला के आपको यहाँ कैपेसिटी मिलती है 32 इलेक्ट्रॉन्स की एंड वी हैव m is 18 इलेक्ट्रॉन्स की एंड दिस वी गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स की एंड हियर एट लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की. ओके, तो ये ऐसे इसके सबशेल के वैल्यू आते हैं. तो कैपेसिटी ऑफ शेल्स कैसे डिफाइन होते हैं, तो ऐसे आते हैं और सबशेल के वैल्यू ऐसे आते हैं. सबशेल से ही मेन शेल बनता है. ओके, नाउ हाउ टू राइट अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मीन्स एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कैसे प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो ये होता है एक मेन शेल में और एक होता है सब शेल में. तो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछते हैं सब शेल का बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग मेन शेल का तो फाइंड कर सकते हैं बट सब शेल का हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो इट इज वेरी सिंपल, वी कैन फाइंड इन अ इजी वे. Okay, let's continue. Now, here as you see 1s2. अभी हम लोग ये नंबर को देखेंगे. इधर 1s है तो मैं कौन सा सबशेल ले रहा हूँ, k के अंदर वाला. जो नंबर्स होते हैं ना वो लोग बताते हैं कि मैं कौन से शेल का सबशेल ले रहा हूँ, क्योंकि अब मैं नंबर्स को हटा दूंगा तो यहाँ भी ऐसे यहाँ भी ऐसे.
तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये k का है क्या ऐसे? सो वी रिक्वायर्ड एनी नंबर, सो देयरफॉर ये नंबर्स आते हैं। तो अभी जैसे 1s, s का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबशेल का लिखना है। हमको कौन से, मतलब सबसे पहले आपको फाइंड करना है मेग्नीशियम में कितना जाएगा, k में कितना जाएगा, l में कितना जाएगा, m में कितना जाएगा, n में, तब हम लोग सबशेल का फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एज वी नो 2 8 2, ये है मेन शेल में, मतलब k में 2 जाएगा और l में 1 जाएगा और एट लास्ट m है, n में कुछ नहीं गया, m तक उसका इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, मीन्स उसने अपना ऑक्टेन स्टेट बैलेंस कर दिया, तो m तक ही रहेगा वो। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं और वी कैन राइट इन सबशेल के वे में। तो फॉर एग्जाम्पल एज वी सी 1s2, so it's equals to subshell, it's a subshell का name and it's a number. If I write here for example थर्ड वन, तो मैं कौन से सबशेल की बात कर रहा हूँ? थर्ड सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तब जाके पूरे इक्वेशन बैलेंस हुए। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं सबशेल को। अभी सबशेल एंड ये हमको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डालना है, मींस कैपेसिटी डालना है। इलेक्ट्रॉन्स तो जाएगा बट वो कौन सी कैपेसिटी में जाता है? ओके, सो दिस हाउ वी फाइंड द सबशेल का कैपेसिटी, एंड so I hope you have understand how to find the subshell electronic configuration and the what is atom. And I want you to please comment, I want you to comment on my video and like and subscribe. Okay, I hope you have understand. Okay, thank you.